All right, Jeet. So before our midterm, we discuss about the fundamental of the seepage, and we learned why seepage analysis is important in soil. Then we learned the basics of the seepage underneath a hydraulic structure, what is meant by the uh, different type of the head, what is head loss, how to calculate that. So in today lecture we will talk about the Laplace equation of the continuity, and then we will solve for the one-dimensional flow and two-dimensional flow using the graphical solution to solve the Laplace equation of the flow net concept. So if you see, this is basically the as per OBE, your course learning outcome one is to understand the fundamental of the seepage, which we learned in our previous lecture. And then in today lecture, we will be applying the soil mechanics principle to the seepage problem. In our next lecture, we will solve the dam uplift problem. So what is actually Laplace equation? This basically describe how the energy or the head is basically distributed when water flows from one point to another point. So you can see that this is the uh, upstreams, this is the ground level, this is the soil level, okay, and this is the upstream side, this is downstream side. And why this is, we installed a sheet pile, a type of the structure to basically have a head difference on the both side. So this is H1 on upstream, this is H2 on the downstream. So water will try to seep like this, it will try to flow like this in this direction from upstream to downstream because of the difference of the head, because of the difference of the energy, which is H2 minus H1. So if we take a small soil element, which is this one, suppose A element, and we install a piezometer or the standpipe on this, we can measure the head. So suppose this is very small soil element which has the uh, length and width as dx is the width and the height is dz, and out of plane we take as a 1 meter, and this is the permeable soil layer, and then it is resting on the impermeable soil layer. So if I zoom in this element, this is the three-dimensional element which has in out. We are not going to go into the details because I just want you to explain why there is a need of considering the Laplace equation of the continuity. So it can be applied in many problems, not only in civil engineering. It is very much applied in the to see the temperature difference and the heat transfer in chemical engineering and mechanical engineering, and the voltage difference in the electrical engineering. But in civil engineering, we solve this equation for the to know the flow of the water in soil from one point to another point due to the difference of the head. And we drive this equation using the Darcy's law and the equation of continuity. And you know what is equation of continuity? That the flow at any 2 point will remain same. So this is about the introduction of the Laplace equation. So to understand why we are using this, so this is basically the form of the Laplace equation. And you know what is h? H is basically the head, and dx is the, because there are two coordinate. अगर आप ये देखें तो यहाँ पे x axis है, ओके, सो दिस इज z axis, और जो आउट ऑफ प्लेन है वो y एक्सिस है, जो हम कंसीडर नहीं कर रहे। दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x और y, और एक वर्टिकल एक्सिस है z। तो अगर मैंने हेड किसी भी x और z हॉरिजॉन्टल किसी भी कोऑर्डिनेट पे कैलकुलेट करना है, तो वो मैं इस लैप्लास इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो है डबल डिफरेंशिएट ऑफ डी स्क्वायर ऑफ h डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि double differentiate of head loss with respect to the x coordinate and with respect to the
z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ये लेप्लास इक्वेशन की फॉर्म है फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम जिसके अंदर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू hydraulic conductivity in y direction. Okay, then they, so this is the form of the Laplace equation. And for the anisotropic medium, what is meant by anisotropic medium? That the hydraulic conductivity in x direction is not equal to hydraulic conductivity in y direction. So that's why you have kx and ky in these equation. So these are the form of equation. We are going to solve these equation using the graphical solution. So to cut it short, basically this Laplace equation is the special distribution of total head in x and z coordinate. So you can calculate the flow of the water at any location. For example, I give you an example के देर इज़ अ रूम, अगर किसी रूम में आप बैठे हैं तो एक उसकी विंडो वाली साइड है जहाँ से सनलाइट है गर्मियों के अंदर, वहाँ से हीट आ रही है, तो उस लोकेशन के ऊपर हीट, और जो डोर जो उसका दूसरा एंड है उसके ऊपर हीट, और जो मिडल ऑफ द रूम है उसके अंदर हीट सेम नहीं हो सकती। तो अगर आपने डिफरेंस ऑफ द हीट कैलकुलेट करना है विद इन द रूम एट एनी एक्स एंड जी कोऑर्डिनेट, तो यू हैव टू यूज द Laplace equation of the continuity. Excuse me, sir. Anisotropic. Is there anything wrong? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। Sorry. So you have to check your internet. अभी आ रही है आवाज नो आपको? सर, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। यस सर, अब आ रही है सर। सर सबको नहीं आ रही। Okay. So कोई रिवाइज करेगा? फहद, कैन यू रिवाइज दिस स्लाइड? आई विल ट्राई सर। सर हमने लेप्लास इक्वेशंस पर कंटिन्यूटी स्लाइड में पढ़ी है कि अगर हमें एनर्जी डिफरेंस या टोटल हेड का डिफरेंस जो कैलकुलेट करना हो तो हम लेप्लास इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके हमारे पास टू मोड्स है, एक है आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए और एक है एन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। तो आइसोट्रोपिक मीडियम वो है जिसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन के एक्स एंड के वाई वो बराबर हो, तो हम जो आइसोट्रोपिक मीडियम वाला फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। अगर वो बराबर नहीं है तो फिर एन आइसोट्रोपिक मीडियम वाला यूज़ करेंगे। और ये हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये आप प्रॉब्लम देखें, ये वाला प्रॉब्लम है, अगर मुझे इस जगह पे हेड कैलकुलेट करना है तो ये दो कोऑर्डिनेट हैं। एक इसकी, अगर ये 0 0 है, दिस इज सपोज 0 0, ओके, सो दिस पॉइंट हैज सम हाइट, इसका एक z कोऑर्डिनेट है, एंड दिस आल्सो हैज सम distance from x. Similarly, head at this point and head at this point, suppose this is B point, okay, this is A point, and suppose this is C point, it cannot be same. और ये किस चीज़ का फंक्शन है? ये जो हेड है उसे हमें देखना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट पे और z कोऑर्डिनेट पे, यानी कि इस जगह पे हेड, इस जगह पे हेड और इस जगह पे हेड, दे कैन नेवर बी सेम। सो to calculate the head at different special coordinate x and z, we need to use the Laplace equation. Okay, thank you Fahad. Excuse me, sir. So yes, सर ये जो स्केच है सर, ये वाला सर, yes, इसमें कैपिटल H क्या है सर? H2 है कैपिटल ये H1 क्या है? ये राइट साइड सर, H2 सर, H1 एंड H2 सर, बोथ सर। ओके, कौन बताएगा कि H1 और H2 क्या है? हेड है सर, दो पॉइंट्स। ओके, सो ये जिसने पूछा आपका नाम क्या है? ओके, आई शो यू ओवर हियर।
नाम क्या सर आपका आजम खान जिन्होंने सर। क्वेश्चन? आजम खान, ये देखो आजम के सपोज इस तरफ ये पानी है, जिस तरफ ये बंदा बैठा है, नजर आ रहा है? यस सर। सपोज इस तरफ पानी है, ये शीट पाइल नजर आ रही है आपको? ये शीट पाइल है, ठीक है, प्रैक्टिकली। और इस तरफ भी पानी है। यस यहाँ सर। आपने तरबेला डैम देखा है, उसकी एक अपस्ट्रीम साइड है जो रेजरवायर वाली साइड, और दूसरी ये GIK वाली साइड है। क्लियर हो रही है यस आपको सर। बात? तो बिल्कुल जो सर। पानी की हाइट है रेजरवायर के अंदर अपस्ट्रीम साइड पे, वो H1 है। और जो तरबेला की दूसरी साइड पे, एम्बैंकमेंट की दूसरी साइड पे है, वो H2 है। अब समझ आइए आपको व्हाट इज H1 एंड H2? ओके सर, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। सो ये Azam's स्पेशल question is that, डिस्ट्रीब्यूशन, yes, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि ये जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स, ये 0 0 से वो इस डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और वाई इस डिस्टेंस पे लोकेटेड है, मतलब हाइट में। ये बी पॉइंट का एक्स डिस्टेंस ये है, और जी ये है। तो यू कैन सी कि ए एंड बी पॉइंट्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट कोऑर्डिनेट, विच मींस के दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट स्पेशल डिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब समझ आई है मेहरान? ओके सर, समझ गया। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी यस। सर। सर जब हम लोग सर ये तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए तो सर हमें 3 डायमेंशनल ही निकालना पड़ेगा, लाइक 3 एक्सेस होंगे ना, तो ये आप 2 एक्सेस में कैसे निकाल के एनर्जी कह सकते हैं कि ये एनर्जी आ गई? हमें तो तीनों एक्सेस को कंसिडर करना होगा ना सर। ओके, सो माय आंसर इज के अगर आप तरबेला का एम्बैंकमेंट देखें जो एक लेंथ में है, तो उसके पीछे कांस्टेंट हाइट है आउट ऑफ प्लेन। अगर, ओके, लेट मी शो यू, वेट, गिव मी जस्ट, लेट मी डाउनलोड वन। ओके, सो कैन यू सी दिस इमेज? जिसने ये क्वेश्चन की है, क्या नाम है आपका? यस सर, यस सर। जैन नाम तारिक क्या सर। आपका? जैन जैन। तारिक। ओके, जैन तारिक, ऑलराइट। सो जैन, अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन काटूं यूं, ये नजर आ रहा है जैन आपको? यस सर, यस सर। सो दिस इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है? ये बात समझ आ गई आपको? अगर मैं इस यस एक्स सर। एक्स को प्लॉट करूं, वेट, अगर इस एक्स एक्स को मैं इधर प्लॉट करूं, तो स्क्रीन पेन, ओके, सो दिस इज द डैम बॉडी, सपोज, ओके, ठीक है जैन, एग्रीड? यस सर, यस सर, यस और सर। अज्यूम करते हैं कि ये एक परमिएबल सॉइल है, ओके, ये इसके नीचे इम्परमिएबल, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, ठीक है? और ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ओके। उसके बाद लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पॉइंटर। दिस इज द ग्राउंड वाटर लेवल ऑन द अपस्ट्रीम साइड H1, ओके जैन? और ये यस सर, H2 यस है। सर। ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है? ये वाली जो है, ये वाला जो वाटर है, ठीक है? और ये वाला वाटर। अब जैन आप ये देखो कि आप इस जगह पे खड़े हैं, या आप इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, क्या H1 चेंज हो रहा है? नो सर। ओके, सो इसका मतलब है कि ये वाली जो लेंथ है जो आउट ऑफ प्लेन है, इसको मैं 1 मीटर कंसीडर कर सकता हूँ। इसको हम कहते हैं प्लेन स्ट्रेन अजम्पशन, ठीक है जैन? ओके सर, ओके सर, ओके। सो है, अगर आप देखें तो मेरा एनर्जी का डिफरेंस इस तरफ है, इसलिए मैं जो ये बिल्कुल। वाली साइड है इसको कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूँ, आउट ऑफ प्लेन में 1 मीटर ले रहा हूँ। तो इसलिए हमने 3D ओके सर। प्रॉब्लम को 2D प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली अज्यूम कर लिया है। बट आई एग्री कि दिस इज एक्चुअली 3D, बट इन अंडर ग्रेजुएट लेवल
या इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 3D को 2D में अज्यूम कर सकते हैं. दिस इज रीजनेबल अजम्पशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके सर. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. यस. सर अल्लाह ताला ये हालात तो ठीक करे सर. जब ये हालात ठीक हो जाए सर, तो फिर आप काइंडली ये तुरबेला का एक टूर अरेंज करें सर, ताकि हम वहाँ पे जाए सर, फिजिकली देख लें कि तुरबेला में क्या क्या है. सर हम यहाँ पे थ्योरी में पढ़ते तुरबेला में ये है, लेकिन हमने अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा है कि तुरबेला में क्या है सर. ऑल राइट. ओके, वी विल अरेंज योर स्टडी टूर. ऑल राइट. ठीक है. Okay जी, so I hope कि you understand the physical meaning of the this particular sketch. ये तो है शीट पाइल का sketch है, ये डैम का भी हो सकता है. Okay, H1, H2, H anyways, और 2D assumption भी आपको clear होगी. Okay, so you know the shape of the Laplace equation, you know what is a differential equation. Okay, और आपको पता है कि ये small h क्या है. What is small h? कौन बताएगा? हेड लॉस. हेड लॉस. वेरी गुड. और x क्या है? ये बेसिकली उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और z जो भी हम कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं जहां पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. ओके, सो एंड यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज आइसोट्रोपिक मीडियम ऑफ परमेबिलिटी एंड आइसोट्रोपिक मीडियम ऑफ परमेबिलिटी. ओके, सो स्लाइड्स नजर आ रही हैं ना आप लोगों को? यस सर. ओके, सो नो लेट्स सी कि ये इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करेंगे. सो टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी हैव सम एनालिटिकल सॉल्यूशन. ओके, और हम ये इस वक्त अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वी डू नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग द एनालिटिकल सॉल्यूशन. ओके, देयर आर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वी हैव फाइनाइट एलिमेंट कोड एंड फाइनाइट डिफरेंस कोड्स. वो हम एक्सेल शीट या कोई पाइथन कोड लिख सकते हैं, या हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ करिकुलम, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको न्यूमेरिकली इसकी कैलकुलेशन बताऊं. बट आई डोंट थिंक कि योर क्लास हैज़ सम रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्लास रीस्केड्यूल करनी हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड. ओके, सो इट इज़ लाइकली, इट डिपेंड्स कि अगर मुझे टाइम मिला, बट दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ करिकुलम कि आप न्यूमेरिकली यूजिंग सॉफ्टवेयर से लैप्लास इक्वेशन कैलकुलेट करें. बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द करिकुलम. ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का पार्ट है कि यू मस्ट लर्न, एवरी वन ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व द लैप्लास इक्वेशन यूजिंग द ग्राफिकल सोल्यूशन. ओके, यूजिंग फ्लो नेट्स. तो हम फ्लो नेट से जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं इस लेक्चर के अंदर आपको सॉल्व करवाऊँगा. एनीवेज, सो एनालिटिकली जो है वो वन डायमेंशनल फ्लो की इक्वेशन से आई कैन गिव यू वन एग्जांपल. ओके, सो लेट्स सी कि ये आप देख सकते हैं कि एक सॉइल सैंपल है जिसकी लेंथ है L. ओके, इट हैज़ लेंथ L एंड यू कैन सी कि जो सैंपल है वो x0, यानी कि जहाँ से सैंपल स्टार्ट हो रहा है उसका x0 है, और लेंथ ऑफ सैंपल x इज इक्वल टू L इज द इंटायर लेंथ. दिस इज नोन एज द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. और आप देख रहे हैं कि ये वन डायमेंशनल फ्लो की बात हो रही है. दिस इज नॉट अबाउट टू डायमेंशनल. इसमें हम z की बात नहीं कर रहे. वी आर अज्यूमिंग कि वाटर कैन ओनली फ्लो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, and the head loss we care only about the horizontally. This is just to show you example के how to solve the Laplace equation analytically. जो two dimensional equation है, sorry, that is very difficult to solve and that is beyond your understanding at your current level. जो आपका undergraduate level अभी second year है उसके अंदर वो solve नहीं करवाई जा सकती. तो ये एक सॉइल सैंपल है जिसकी लेंथ L है, और सपोज वहाँ पे हमने एक रेजरवायर रखी हुई है जिसका हेड H है. सो लेट्स सी कि कैसे हम फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी डिस्टेंस x. तो हमने एक इक्वेशन, हेड की एक इक्वेशन बनानी है. सो वी हैव टू डेवलप द इक्वेशन ऑफ द हेड विच शुड बी फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट. ओके,
So this is our purpose. So Laplace equation for one dimensional isotropic condition ये हो जाएगी, double differentiate of head difference divided by d square h को हम डबल डेरिवेट करें with respect to x, it should be equal to 0. So let's see how to solve this. If I integrate it, तो आपको पता है कि 0 किसके आ जाएगा, C1 के अंदर आ जाएगा, ओके. और अगर इसे मैं दोबारा इंटीग्रेट करूं तो दिस विल बी h एंड C1 टाइम्स x प्लस C2. किसी को ये इंटीग्रेशन नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी, बट मेहरान और फाहद, आई अज्यूम जैन के you already have the integration Yes, idea sir. in intermediate, Yes, right? sir. Yes, sir. Okay, Yes, so I sir. don't Excuse me, need to sir. explain कि ये सर C1 कैसे सर ये है, स्केच में स्मॉल एच किया है सर, स्केच में स्मॉल एच सर इधर है सर स्केच में. Okay, so this is small h, head difference, okay? Is it clear now? ओके सर, थैंक यू. Okay. So the difference of the head between 1 point and 2 point, okay? So अब आपको, so you understand कि what is x, right? अब हमारे पास दो लिमिट्स हैं. हमारी लिमिट क्या है कि हमारा सॉइल जो है उसकी एक बाउंड्री कंडीशन 0 है, ओके, और जो h है, जो हमारा हेड लॉस है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल H इन दिस पर्टिकुलर स्केच एज समवन हैज आस्क्ड मी, ओके. एंड जो x की अपर लिमिट है वो बेसिकली कैपिटल L है, और जो हेड लॉस यानी कि हेड की जो लोअर लिमिट है वो 0 है. सो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, फॉर एग्जांपल केस 1 की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, फिर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, तो आई कैन कैलकुलेट C2 एंड C1 कांस्टेंट. सो यू नो द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, राइट? So if I insert these values, I can calculate C2 and C1. और अगर मैं ये C2 और C1 इंसर्ट करूं इस इक्वेशन में बैक यहाँ पे आके, तो मेरे पास H की इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू टोटल हेड माइनस H डिवाइडेड बाय L इंटू X. अब सपोज मैंने कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द एनर्जी लेवल और द हेड एट दिस X डिस्टेंस, ओके. तो मुझे फॉर एग्जांपल 2 मीटर, 1 मीटर, 1 फीट, 2 फीट, तो आई कैन इंसर्ट दिस वैल्यू. L इज द टोटल सॉइल लेंथ, H इज द हेड. सो ये जो डेरिवेशन है ये सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि इस इक्वेशंस को हमने कैसे मैथमेटिकली फॉर्म में सॉल्व किया है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. इसी तरह हम डैम्स के लिए भी मैथमेटिकली इस लैप्लास इक्वेशन को एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन इफ़ वी डू फॉर द 2 डायमेंशनल. तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो यूज़ करेंगे हम फ्लो नेट्स, ओके. और उसका क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस सर सर यहाँ पे सर ये स्मॉल एच एंड कैपिटल एच ये सर इक्वल है सर, तो सर ये इक्वेशन में एक दूसरे ये कैंसिल हो जाते हैं फिर. सॉरी, फाइनल इक्वेशन में सर ये स्मॉल एच एंड कैपिटल एच सर इक्वल है सर. स्मॉल h एंड कैपिटल H इज इक्वल. यस सर, ऊपर सर स्केच में भी Okay, हमने okay, wait, आपने please शो किया है सर. wait फॉर अ मिनट प्लीज. जहां पे सॉइल स्टार्ट हो रही है वहां पे x की वैल्यू क्या है? सर एक्स की वैल्यू 0 है सर. ओके, सो इस इक्वेशन में मैं जब 0 पुट करूंगा तो अभी तो ये सॉइल स्टार्ट हुई है, यहाँ पे कोई हेड लॉस होगा हमारे पास? सर हेड लॉस तो टोटल साइल में होगा सर, एच तो हमारे प्लीज पास है प्लीज सर. हेलो, वेट फॉर अ मिनट, ओके. माय क्वेश्चन इज कि वाटर हैज नॉट एंटर्ड इनसाइड द सॉइल, राइट? x इज 0, एग्रीड? यस सर. हेलो, ये बात आप एग्री करते हैं? यस सर. Okay, so what would be the value of x at this point 0, or what is the value of small h is equal to capital H, right? ये तो इस ग्राफ से आपको क्लियर है ना कि इस जगह पे प्रेशर हेड की क्या वैल्यू है इस x इक्वल टू 0 पे. तो अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो C2 की वैल्यू आपके पास आएगी कैपिटल H.
ओके, देन आप ये वाली बाउंड्री कंडीशन इसके अंदर इंसर्ट करोगे। तो जो एग्जिट पॉइंट होता है जहां पे साइल एंड हो जाएगी वहां पे आपका हेड 0 है। ओके, हेड लॉस 0 है, सॉरी नॉट हेड, हेड लॉस 0 है। सो जब आप इसमें ये वाली कंडीशन पुट करोगे तो x इज इक्वल टू L, so C1 multiplied by L, C2 is already you know के you have to assume, okay, so यहाँ पे आपका ये 0 आ जाएगा, सॉरी C2 आप, so 0 is equal to C2 plus C1 times x is L now। इस पॉइंट पे मैं इक्वेशन ये सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो C2 आपके पास आ जाएगा माइनस C1 L। ओके, सो हमने C1 कैलकुलेट करना है बिकॉज C2 इज ऑलरेडी विद अस, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस H डिवाइडेड बाय L। So to cut it short, you just need to insert the value boundary condition इस point पे और इस point पे, and at the end of day you develop the equation, and that equation you can use at any horizontal distance at any horizontal coordinate. This is what I meant. अब आपका कोई question है तो मुझसे पूछें। एक्सक्यूज मी सर। सर तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि स्केच में हमने जो स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच लिखा है सर, फिर ये नहीं हो सकता है सर। हम इधर एच की जगह पे लिखेंगे कि स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच एंड एक्स इज इक्वल टू एल की जगह पे राइट में लिखेंगे कि स्मॉल एच इज इक्वल टू 0 सर। ओके वेट, ये जो मैंने स्मॉल एच इज इक्वल टू एच लिखा है ये मैंने इस कंडीशन के लिए लिखा है, ठीक है, इस पॉइंट इनिशियल कंडीशन के लिए सर। जी इनिशियल कंडीशन के लिए, और फाइनल ओके कंडीशन सर, पे आपका हेड लॉस 0 होगा एग्जिट पॉइंट पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करें तो अब आपका जो हेड लॉस है वो फंक्शन है टोटल हेड का, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, विच यू कैन मेजर टोटल हेड, ओके, माइनस टोटल हेड डिवाइडेड बाय एल, वो डिस्टेंस जिस पे आप मतलब टोटल जो साइल की लेंथ है, ओके, और वो एक्स डिस्टेंस जिस पॉइंट पे यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दी head loss. So you can see that you can calculate the energy dissipation at any x coordinate by solving. This is the one-dimensional Laplace equation solution. Two-dimensional Laplace equation solution is beyond the scope of your understanding. So we will learn to solve that using the graphical solution. Okay. और ये जस्ट मैं शो कर रहा था आपको कि मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्लाइड? ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फ्लो नेट्स। सो फ्लो नेट्स आर बेसिकली यूज्ड for the graphical solution to solve the 2D Laplace equation, two-dimensional Laplace equation, okay, of the seepage. And how we solve that, we have to see there are two type of the lines. One is the equipotential line, okay, or the second one is the flow lines. अब equipotential line के physical meaning ये है कि ये वो line होती है जो connect करती है, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द इक्विपोटेंशियल लाइन तो इट मीन्स कि ऑल द पॉइंट ऑन दिस लाइन हैज द इक्वल टोटल हेड एच, सो इक्विपोटेंशियल, ओके वर्ड। और जो फ्लो लाइंस होती हैं वो डायरेक्शन ऑफ सीपेज बताती हैं। तो ये अभी मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को, two flow lines जो हैं, two flow lines should never meet each other, okay, two equipotential lines should never meet. For example, एक फ्लो लाइन और दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को मीट कर सकती है 90 डिग्री के ऊपर, लेकिन दो फ्लो लाइनें एक दूसरे को मीट नहीं कर सकती, या दो इक्विपोटेंशियल लाइनें एक दूसरे को मीट नहीं कर सकती, ओके। सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू व्हेन आई विल प्लॉट दिस स्केच। सो टू समराइज दिस स्लाइड, what are the flow nets? Flow nets are basically the graphical solution to solve the two-dimensional Laplace equation for the seepage.
और जो फ्लो नेट्स हैं उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं और दूसरी फ्लो लाइंस हैं। इक्विपोटेंशियल लाइंस, दो इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती और दो फ्लो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल लाइन दूसरी फ्लो लाइन को 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती है। व्हाट डज दैट मीन? लेट अस सी ओवर हियर। ओके, सो अगर आप ये देखें कि ये एक शीट पाइल है, ओके, सिमिलर टू दिस वन, और ये इसकी अपस्ट्रीम साइड है जहां पे हेड है H1, so you can see कि this is H1 water head. Okay, on the downstream side, other side of the sheet pile, there is a head H2 और ये permeable soil है, this is the permeable soil medium, this one. What does mean by permeable soil? कि it has some coefficient of the permeability और ये pervious soil है, it means कि its hydraulic conductivity is 0. अब वाटर क्या करेगा? फ्लो करेगा फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड टू डाउनस्ट्रीम साइड। तो ये जो लाइन हमने शो की हुई है, दिस इज नोन एज फ्लो लाइन, ये दिस इज अ फ्लो लाइन। और यहाँ पे आइसोट्रॉपिक कंडीशन है कि द hydraulic conductivity in x direction and hydraulic conductivity in vertical and horizontal direction both are same, so it means that this soil is a isotropic soil with respect to the permeability. और आप ये देखें कि ये एक लाइन है जो कि इक्विपोटेंशियल लाइन है, this is the equipotential line, the red line, and let me change the color. This is the flow line. Okay, so this show the direction of the flow. और आप ये देखें कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी हमेशा 90 डिग्री के ऊपर, दिस इज द कंडीशन। अब अगर आप पीजोमीटर इंस्टॉल करें किसी भी लोकेशन पे ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन, तो इट शुड गिव यू अ सेम हेड। ओके, सो ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन इट मीन्स के द हेड इज सेम। सो आई बिलीव के प्रैक्टिकली आपको समझ आई है कि व्हाट डज फिजिकल मीनिंग ऑफ द फ्लो लाइन। फ्लो लाइन बेसिकली शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ द फ्लो और इक्विपोटेंशियल लाइन शो करती हैं द लाइन which is drawn perpendicular to the flow line, and every point on the equipotential line is assumed to have the same head. Any question related to this figure कि ये फ्लो नेट क्या है, इसके अंदर फ्लो लाइन क्या है, इसके अंदर इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, इसके अंदर kx इज इक्वल टू kz किस कंडीशन को शो करता है, व्हाट इज h1, व्हाट इज h2, व्हाट इज शीट पाइल। सो मेहरान, कैन यू लाउडली Excuse me, प्लीज sir. रिवाइज दिस स्लाइड? सर ये फ्लो लाइन पैराबोलिक किस तरह हो सकता है सर? ये पैराबोलिक किस तरह हो सकते हैं? ये प्रैक्टिकली जब इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने फ्लो लाइन ऑब्जर्व की लेबॉर्ट्री के अंदर, तो उन्होंने इसकी डायरेक्शन जो है ना प्लॉट की है। अब ठीक है फहद, सो दिस इज ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल सर ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिकली सर फ्लो तो हमेशा सर हाई हाई हाइट से लो हाइट पे होगा सर, और तकरीबन इंक्लाइनेड होगा या सर एक एंगल पे होगा सर? नहीं 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 नहीं, फ्लो तो हाई से जा रहा है, H1 से H2 की तरफ जा रहा है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। बाकी व्हाई दिस इज नॉट लाइक दिस, व्हाई इज दिस, दिस हैज बीन प्रैक्टिकली प्रूवन इन एक्सपेरिमेंट्स। सो ये इसकी पैराबोलिक शेप ही होती है। ओके, आई कैन शेयर द वीडियोज इन विच यू कैन सी कि वो कलर से दिखाएंगे कि फ्लो लाइंस। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, सो मेहरान, कैन यू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लो नेट्स? यस सर। सर क्या फ्लो होता है नेट जो है ये फ्लो नेट चाहिए? ग्राफिक, सर ये ग्राफिकल सोल्यूशन है कि हम सीपेज क्वांटिटी फाइंड करें, इस तरह डिफरेंट चीज़ें इससे फाइंड करें। इसमें सर एक फ्लो लाइन होता है जो डायरेक्शन ऑफ सीपेज को शो करता है कि पानी किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक हायर एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। दूसरा सर इक्विपोटेंशियल लाइन है जो हमें हर एक पॉइंट पे शो कर रहा होता है हेड। तो अगर इक्विपोटेंशियल पे हम किसी भी जगह पे पीजोमीटर इंस्टॉल कर दें तो वो हमें हेड सेम शो करेगा, जिसका मतलब ये है कि इस पे जो है वो पोटेंशियल सेम रहता है।
और दूसरा अगर kx इज इक्वल टू kg हो यानी आइसोट्रोपिक कंडीशन हो तो ये दोनों लाइन जो है ये 90 डिग्री पे मीट करेंगे और आपस में लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, चाहे इक्विपोटेंशियल हो चाहे फ्लो लाइंस हो। Okay. Okay, it will be more clear because we are going to talk in details. So this is the rule. एक्सक्यूज मी Yeah. सर, Yes. सर ये फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन 90 डिग्री का एंगल तभी बनाएंगी जब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सेम हो। Yes, exactly. जब isotropic condition हो. ओके सर, थैंक यू। Okay. So you can see कि ये rule आपने हमेशा याद रखना है 90 degree. Okay. Anyways, this is the let's see the practical example के अब आपने अभी ये नहीं सोचना कि ये लाइनें चार ही क्यों हैं, ये कैसे प्लॉट होंगी। दिस इज समथिंग आई विल टीच इन आवर फर्दर लेक्चर्स। अभी सपोज कि दिस इज द प्रॉब्लम गिवन टू यू। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है, अगर आप देखें कि दिस इज द शीट, दिस इज द इम्परवियस लेयर, ये रॉक है सपोज, ओके, उसके ऊपर ये सॉइल है, दिस इज दिस सॉइल, और दिस इज द अपस्ट्रीम साइड, यहाँ पे हेड H1 है, और ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड देयर इज H2 एंड देयर इज अ शीट पाइल। So H1 is greater than H2. So you understand कि water will flow in this direction. Okay. So I believe कि every one of you agree on this point. ठीक है। अब ये आपको गिवन है, अगर आप देखें तो एक ये लाइन आपको फ्लो लाइन गिवन है, ये फ्लो लाइन गिवन है, ये फ्लो लाइन गिवन है, राइट। और इक्विपोटेंशियल लाइंस आपको गिवन है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल लाइन, दिस इज द इक्विपोटेंशियल लाइन, दिस इज एंड सो बिटवीन टू फ्लो लाइंस, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो ये एक चैनल है, दिस इज वन चैनल, ओके। सो वी कॉल दिस एज अ चैनल, दिस इज नंबर 2 चैनल, फ्लो चैनल हम इसको कहते हैं। दिस इज नंबर 3 फ्लो चैनल, दिस इज नंबर 4 फ्लो चैनल। ये जो आपको फिगर गिवन थी इसको हम कहते हैं फ्लो नेट ऑफ दिस शीट पाइल डायग्राम। इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ फ्लो चैनल है, 1 2 3 एंड 4। सो वी कैन राइट n सबस्क्रिप्ट f इज इक्वल टू 4। एनी क्वेश्चन के फिजिकली आपको पता चला है कि फ्लो नेट से हाउ वी कैन से कि देयर आर 4 nf मींस द नंबर ऑफ द फ्लो चैनल्स। ओके, सो सर देन इसमें यस सर इसमें ये इम्परवियस के ऊपर जो ये लाइन है ना F2G, ये स्ट्रेट लाइन भी फ्लो लाइन होगा। yes, this is also a flow line. ओके सर। Okay, this is an excellent question. Okay, anyways, so I hope कि this is simple कि इसमें अगर मैं काउंट करूँ तो this is one flow channel, this is second flow channel, this is third, okay, and this is fourth. तो n subscript f is 4 in this problem. Now let's see what is n subscript d. We call this as a equipotential drop. ये क्या है, equipotential drop. So n subscript d, okay, is the equipotential drop. So let me delete this writing. Okay. Sorry. Now this is the first equipotential drop. Okay, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth. So this is how we calculated 6 number of equipotential drops. If someone say कि let us calculate from here, so this is one equipotential drop, so you draw a small circle in this particular area. Then this is number 2 equipotential drop, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. Okay, so please count down this 1 2 3 4 5 6. Even if you want to calculate in this channel, 1 2
3, 4, 5, 6. So you can see that everywhere I calculated number of equipotential drops are 6. So by this problem I have given you कि this is the flow net problem of this particular sheet pile example, जिसके अंदर एक upstream side है, downstream side है, और आपको flow net given है जिसके दो component हैं, एक flow channel है और दूसरा number of equipotential drops हैं, and you calculated the n subscript f, which is the number of the flow channel in the flow nets, and n subscript drop, n subscript d, we call this as a equipotential drop or the number of the potential drops, okay, n subscript d. So let us solve another example where you have to answer my question. तो कौन इसमें बताएगा कि अब हर एक स्टूडेंट अपने दिल में काउंट करे कि कितने नंबर ऑफ फ्लो चैनल है. सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम. ये एक डैम है, ओके, डैम की वियर है, फाउंडेशन है. So this is the dam foundation, okay. ये डैम की फाउंडेशन है, और दिस इज द डैम, ओके. और ये डैम की अपस्ट्रीम साइड है. दिस इज द परमिएबल सॉइल जिसमें से सीपेज हो सकता है ये, और दिस इज द इम्परमिएबल स्ट्रेटा. और एक और चीज आपने नोट करनी है कि यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं वो इम्परवियस लेयर को 90 डिग्री पे मिल रही हैं, ओके. वो एक दूसरे को भी इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. इसी तरह जो फ्लो लाइन है वो जो अपर बाउंड्री है उसको 90 डिग्री पे मिल रही है. इवन ये जो फिल्टर है, टो फिल्टर, व्हाट आर द टो फिल्टर, आई विल एक्सप्लेन यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जब हम ये डिज़ाइन करेंगे डैम्स के. So this is meeting at the 90 degree. So you have to note down all of these rules के flow nets are really interesting. So अभी आप लोग कैलकुलेट करो कि कितनी फ्लो चैनल्स हैं इसके अंदर. कौन बताएगा मुझे? जैन? Yes sir. How many flow channels? 5 flow channels और 9. So 5 flow channels and 9 equipotential drops. So 1, 2, 3, 4, 5 flow channels. So you said 5, right? Yes sir. Okay, let's calculate equipotential drop. 1, 2, 9 3, sir, there will be 9. 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, so right, so n subscript f is 5, n subscript d is 9. So I hope के graphical solution के अंदर आपको ये पता चल गया कि कोई ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको फ्लो नेट गिवन हो तो व्हाट आर द फ्लो लाइंस, कैसे सबसे पहले आपने गवन करना है कि ये राइट है. अगर ये 90 डिग्री ना हो तो यू शुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज वी आर सॉल्विंग दिस फ्लो नेट फॉर द आइसोट्रोपिक कंडीशन. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये मैं एग्जाम में या क्विज में दे सकता हूँ कि मैं ये आपको इस तरह फ्लो नेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इक्विपोटेंशियल लाइन इस तरह की दे दूँ, तो यू शुड write down in your answer कि these are the wrong flow nets because it is not intersecting the impervious layer at 90 degree, okay. even ये आप देखें कि हर जगह 90 degree है, okay. So any question के how I calculated? Excuse me sir. सर yes? ये फ्लो लाइन सर 4 नहीं है सर? Sorry? फ्लो लाइंस जो है सर ये 4 नहीं है सर, 5 किस तरह हो सकते हैं सर? फ्लो लाइंस तो नहीं है, मैंने कहा काउंट करें, मैंने क्या वर्ड यूज किए है, कौन बताएगा? फ्लो चैनल्स. फ्लो चैनल्स. सर आपने फ्लो चैनल्स का पूछे. अब आपको समझ आइए कि फ्लो चैनल ये देखें डैम और फर्स्ट फ्लो लाइन के दरमियान, दिस इज योर फर्स्ट चैनल, राइट, दिस इज योर सेकंड चैनल. ये किसने क्वेश्चन किया था? सर आजम खान सर. आजम, कोई इशू नहीं है, आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप पूछें, ठीक है. दिस इज योर थर्ड फ्लो चैनल, दिस इज योर फोर्थ फ्लो चैनल एंड दिस इज फिफ्थ. आजम समझ आइए अभी आपको? ओके सर, थैंक यू सर. ये टाई फिल्टर किया होता है सर? क्या? ये सर राइट में जो लिखा है तो फिल्टर वी डिजाइन टू कलेक्ट वाटर एट द डाउनस्ट्रीम साइड. ये अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है और क्या और क्यों डिजाइन करते हैं, ओके.
ओके सर, This is not the part of this lecture, okay? Anyways, so I believe that flow nets is clear to you. So these are the rules that flow lines are perpendicular to the upstream ground surface. So this is the upstream ground surface. So you can see that these are the flow lines and these are at 90 degree. I hope कि every one of you agree कि ये intersect जो है वो 90 degree पे कर रही है यहाँ पे. Flow lines are perpendicular to the face of the toe filter. I already told you that this is 90 degree, this is 90 degree, this is again 90 degree. The equipotential lines are perpendicular to the impervious boundary. So this is the equipotential line and you can see that this is perpendicular. And you can see that cells are almost square. So for example, this cell is almost square. This is not 100% square, but this is just an assumption, okay? Anyways, so this was about the dam problem. Now let us see the calculation of 2D flow. Okay, so अगर ये बेसिकली क्या है, ये लाइन मेहरान ये बताओ ये लाइनें क्या हैं, ये जो दोनों लाइनें मैंने टिक की हैं इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? equipotential lines. फ्लो लाइंस सर. फ्लो लाइन सर, फ्लो लाइन. सर ये फ्लो नहीं है सर. सर फ्लो पे तो फिर ये सेम होता ना हेड equipotential. आवाज आ रही है किसी को? सर आपकी आवाज सर आपकी मुझे आ रही है सर की आवाज. नहीं आ रही, नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो, अभी आवाज आ रही है मेहरान आपको? सर आवाज आ रही है. यस सर. Sorry. Okay, sorry. Okay, let me revise it again. अभी सबको आवाज आ रही है ना? यस सर. ओके, सो अगर मैं इस फ्लो नेट में से सॉरी अगर इस फ्लो नेट में से हम कोई भी एक स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जूम इन करें, ठीक है, ये स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको जिसके अंदर ये दो इक्विपोटेंशियल लाइन है और ये दो फ्लो लाइंस हैं, तो आई कैन प्लॉट समथिंग लाइक दिस. ये जो मैंने सर्कल प्लॉट किए हैं ये बेसिकली दो फ्लो लाइंस हैं और ये जो टिक हैं ये दो मेरी इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं. अब इस इक्विपोटेंशियल लाइन पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे और एक होगा यहाँ पे, तो इसलिए हमने एक पीज़ोमीटर इधर इंस्टॉल किया और एक पीज़ोमीटर इधर इंस्टॉल किया, तो डेफिनेटली जो टोटल हेड है वो इधर डिफरेंट होगा और जो टोटल हेड है वो इस इक्विपोटेंशियल लाइन पे डिफरेंट होगा. दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो उसे मैं हेड लॉस कह सकता हूँ. तो आप सबको ये टिपिकल एग्जांपल समझ आई है कि ये क्या चीज़ मैंने प्लॉट की है? Yes sir. Yes sir. Yes. Okay, Mehran, can you please revise this so that your class fellow understand? सर इसमें हमने एक फ्लो एलिमेंट उससे उठाया है एक स्क्वायर. हाँ. उसमें हमने दो ज्योमेट्री इंस्टॉल की फ्लो लाइन पे. तो उसमें एक हेड डेवलप हो गया एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे. उनका डेफिनेशन हमने दिया तो
उसमें हेड डिफरेंस आ गया। इसका मतलब ये कि फ्लो हमेशा फ्लो लाइन पे होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो Okay. Okay, thank you. constant All right, good. So, uh, from this sketch, you understand कि sketch के physical meaning क्या है, practically क्या है, okay? अगर नहीं किसी को आए तो I can explain, समझ नहीं आई. Anyways, hydraulic gradient अगर मैं इस particular sketch के लिए calculate करूँ तो that is the ratio of the head difference divided by the length at which we are calculating the head difference, that is capital L. So I believe कि you have no issue because हमने already ये average hydraulic gradient calculate किए हैं in our previous chapter. So अब हमें पता है कि Q is equal to A into V is basically the continuity equation. So discharge की equation है, okay? और Darcy's law कहता है कि V is equal to K into I. Okay, A K I. ओके सो ये मैंने आई की वैल्यू पुट की है ओके इस इक्वेशन में और के इज ऑलरेडी सो ए मैंने ऑलरेडी आपको तरबेला डैम में जो एग्जांपल दी है उसमें मैंने क्या बताया कि आउट ऑफ प्लेन हम क्योंकि वो सेम रहता है हेड तो इसलिए वो हम 1 मीटर अज्यूम करते हैं तो एरिया जो है दैट इज इन प्लेन विड्थ बी मल्टीप्लाइड बाय 1. So that's why the flow rate delta Q is equal to K multiplied by area, which is 1 into B multiplied by hydraulic gradient, and hydraulic gradient is delta H by L. So Fahad, this is simple, right? Yes sir. Okay. Now हम ये assume कर रहे हैं कि ये जो हमारा फ्लो नेट है उसके अंदर ये इक्वल स्क्वायर बन रहा है तो जो B है और L है वो दोनों इक्वल हैं बोथ आर इक्वल ओके सो इन दिस पर्टिकुलर फ्लो नेट B and L both are equal so the flow rate will become K times delta H. So I hope that this assumption is very much clear that in this particular sketch in which we have the flow lines, equipotential line, so the distance between two flow line is basically B and distance between two equipotential line is capital L. Both are equal, that's why both of these will cancel each other for this particular equation and delta Q will become K times delta H. अब ये एक छोटे से फ्लो चैनल और एक छोटे से इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के लिए अब हमने ये पूरे प्रॉब्लम के लिए इसे ड्राइव कर रहे हैं ओके सो लेट अस सी दिस एग्जांपल तो आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस इज द शीट पाइल मेहरान आवाज आ रही है ना आपको सर ये यस सर ओके इसमें एक क्वेश्चन था सर सॉरी एक क्वेश्चन था सर इसमें यस यस प्लीज सर इसमें ये लास्ट इक्वेशन जो है डेल्टा Q इक्वल टू K डेल्टा H जी तो इसमें तो सर हम हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल लाइन के दरमियान जो डेल्टा H है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना सर नहीं व्हाई दिस कैन नॉट बी कांस्टेंट मेहरान ओके दिस इज डेल्टा एच एनी वैल्यू तो होगी ना कोई अभी तो हम एक वेरिएबल वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं ना मेहरान यस सर ये तो एग्री करते हो ना दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल्टा एच बाय एल मैंने सिर्फ वो इंसर्ट की है ठीक है नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम दो इक्विपोटेंशियल लाइन और ले लें और उनमें पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है तो वो सारे इक्विपोटेंशियल लाइन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा नहीं सेम नहीं होगा बट वी विल यस इट विल बी सेम अगर ये डिस्टेंस सेम रहता है आई एग्री यू आर राइट मेहरान इज राइट लेकिन आई होप कि ये डेरिवेशन बट योर आंसर इज राइट योर क्वेश्चन इज राइट ओके मेहरान समझ आइए आपको बात क्यों सेम रहेगा क्योंकि आपका डिस्टेंस सेम है जो दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के दरमियान है ओके यस सर तो फिर जो डिस्चार्ज है वो भी सेम रहेगा ना
फ्लो चैनल, हर एक फ्लो चैनल। यस, डिस्चार्ज भी सेम रहेगा, लेकिन अभी तो ये मैंने एक स्मॉल पोर्शन के लिए किया है ना, आगे देखते हैं ना। ओके ओके ओके, ऑलराइट। एक्सक्यूज मी नाउ यस, सर, जो कांस्टेंट की बात की सर इसने के डेल्टा एच सेम रहेगा सर, लेकिन स्क्वायर की फ्लो चैनल्स की वो विड्थ और एरिया मतलब डिफरेंस है, सबकी एरिया मुख्तलिफ है सर। तो सर उसमें फॉर फ्लो दिस, ओके ओके, प्लीज प्लीज, ये जो अभी स्केच मैंने प्लॉट किया उसमें आपको एरिया नजर आ रहा है कि क्या है, b/1 है, ये एग्री करते हैं आप? यस सर। Okay, for this particular problem, let's not discuss anything other. Okay, forget about constant head, blah blah blah. Okay, just see के मैंने जो इक्वेशन ड्राइव किया वो मैंने वेरिएबल्स उसके अंदर डेल्टा एच क्या है, बी क्या है, एल क्या है, के अब ये 2 वैल्यू आती है हर जगह पे, 4 आती है, फॉरगेट अबाउट इट। ओके, एक्सक्यूज मी सर, सर ये एरिया इज इक्वल टू बी इंटू 1 जो है ना सर, ये 1 आपने जो स्टार्ट में एजम्पशन किया था उसकी बेस पे है सर? कौन बताएगा कि b/1 क्यों है? ये वन जो है आउट ऑफ सर प्लेन। जैसे मैंने आपको तरबेला डैम की लेंथ में दिखाया कि जो हेड है वो कांस्टेंट रहता है आउट ऑफ प्लेन, तो हम सिर्फ क्रॉस सेक्शनल लेते हैं। जो दूसरे 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, एक रेजरवायर जो हरीपुर वाली साइड पे और एक तरबेला डैम की जो लेंथ, जो विड्थ है, तो जो अलॉन्ग विड्थ है वो हम फॉर एग्जांपल 1 मीटर लेते हैं, ठीक है। आउट यस सर, ऑफ सर प्लेन एरिया हम डालते इस तरह स्टेक है क्यों नहीं लेते, बी क्रॉस एल सर? सॉरी, एरिया हम अगर इस तरह ले ले सर, बी क्रॉस एल सर। नहीं नहीं, b/l तो नहीं लेंगे हम। एरिया तो बेसिकली एल जो है दैट इज, ये आप आउट ऑफ प्लेन एरिया ले रहे हैं, नॉट इन प्लेन एरिया, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो वी ऑलरेडी ड्राइव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये अभी आपको, आई होप कि यू डोंट हैव एनी इशू इन अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक चैनल है, 2 चैनल है, 3 चैनल, सो देर आर 3 चैनल, इट मीन्स के टोटल फ्लो जितना पानी लॉस करेगा फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड टू डाउनस्ट्रीम साइड, दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3। इट मीन्स 3 टाइम्स डेल्टा Q, और एक डेल्टा Q हमारा इसके बराबर है। अब ये इसके अंदर आप देखें तो अगर मैं इसकी इक्विपोटेंशियल लाइंस ऑलमोस्ट प्लॉट करूं तो मे बी लाइक दिस, सो लाइक दिस, ओके, सपोज। सो ये जो बेसिकली है ये वाली चीज, वो तो सिर्फ एक इस स्क्वायर के लिए है। ओके, देर आर मैनी स्क्वायर, देर आर दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर। ओके, तो अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल द फ्लो नेट कैन बी ड्रॉन फॉर द ओवरऑल हेड ड्रॉप एच डिवाइडेड बाय इनटू नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो डेल्टा एच जो है वो बराबर होगा टोटल हेड जो है आपका, हेड लॉस, कितने पॉइंट पे ये हेड लॉस हुआ है, एन सबस्क्रिप्ट डी। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डेल्टा एच। सो वी आर गोइंग टू इंसर्ट this over here, or we will multiply this with the number of the flow channel. So total discharge is equal to delta Q, which is the flow in one channel multiplied by number of the flow channel. तो ये हमारे पास टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा, और वन फ्लो चैनल का डिस्चार्ज आ जाएगा K डॉट H। सो अब मैं इस इक्वेशन को फर्दर लिख सकता हूँ कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी multiplied by the head, total head difference of the head divided by number of equipotential drop ND। so अगर मैं ये इंसर्ट करूं डेल्टा Q की जगह इधर, तो दिस इक्वेशन विल बिकम coefficient of permeability times head loss times NF is number of flow channel divided by number of equipotential drop। सो एनी क्वेश्चन के, अब आप देखें 1 मिनट के लिए कि अगर आपने फ्लो कैलकुलेट करना है कि कितना पानी अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड पे सीपेज के ज़रिए लॉस हो रहा है हमारा
डैम के अंदर या फ्लड एम्बैंकमेंट के अंदर या किसी केनाल से, तो वी सिंपली कैन नो दी हेड डिफरेंस, और फिर वहाँ से हम सॉइल के सैंपल ले सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन प्लॉट द फ्लो नेट्स, और फ्लो नेट्स जब आपको गिवन होंगे तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ द फ्लो चैनल एंड नंबर ऑफ द इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप्स. So you can simply use this graphical solution and you can calculate that this much quantity of water we are losing in this particular problem. Any question कि ये कैसे drive हुई है पूरी problem? ठीक है सर. Yes. इसमें सर हमने डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3 गए या 3 डेल्टा Q. इसका मतलब ये है कि सारे फ्लो चैनल्स में डिस्चार्ज सेम है सर. इस प्रॉब्लम में सेम है क्योंकि हमारे पास कर्वी लीनियर स्क्वायर्स हैं. अगर रेक्टेंगल हूं मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा तो फिर डिफरेंट है. सर ये एफएससी में सर हमने पढ़ा था कि दो इक्विपोटेंशियल लाइन के कंसेक्यूटिव हम डिफरेंस ले तो वो सेम आएगा. ओके प्लीज मेहमान, वो सेम होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट सॉल्विंग न्यूमेरिकल, राइट? मैं कोई न्यूमेरिकल तो नहीं सॉल्व कर रहा ना अभी. ओके सर. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको एक फिजिकल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 2 इज इक्वल टू 2. मैं तो आपको एक डेरिवेशन करवा के दे रहा हूँ. ओके, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देन वी कैन सी कि वो एक फ्लो चैनल पे कितना है, दूसरे पे वी कैन कैलकुलेट हेड एट एनी पॉइंट. वो अभी हम उस न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जा रहे. ओके, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. इफ यू हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन तो यू कैन आस्क. Okay, so now there are two cases. One case is कि you have the square, यानी कि आपकी जो फ्लो चैनल के अंदर हैं वहाँ पे L equal to B. Okay, so what does that mean कि अगर ये दो आपकी इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, ये दो आपकी फ्लो लाइंस हैं, तो इनके दरमियान जो स्क्वायर बनेगा, ओके, एंड दिस इज B, so both are equal, so you are going to use this equation. Can you please mute your microphone? Okay, so the second case is कि अगर B is not equal to L, so these are rectangular or these are not square, okay, then you have to use this equation. आपने एक फैक्टर है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज नोन एज n, और n किसके बराबर है? n इज इक्वल टू b बाय l, और l you already know के is the distance between two equipotential line, or b is the difference between two flow lines. Okay, so this is how you are going to modify the equation. So ये practically मैं आपको जो पीछे बात की है वो इधर समझाता हूँ, जो what I was saying in previous slide, कि ये जो फ्लो चैनल है वो कहता है कि इसके अंदर अज्यूम करें आप L/B1. सो कोई ओके, जो फ्लो चैनल नंबर 2 है उसके अंदर वो कहता है कि L/B is 1, बट इट सेज कि इन फ्लो चैनल 3 यू हैव टू अज्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली L/B की जो वैल्यू है वो 1/0.38 है. सो यू कैन सी के फ्लो चैनल 1 + 2 सिंपली विल बी इक्वल टू 2 × Q, और Q की क्या वैल्यू है वो आपको पीछे फार्मूला पता है. ओके, बट फ्लो चैनल 3 विल बी इक्वल टू n, आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू B बाय L. ओके, सो B बाय L, तो ये 0.38 से आपको मल्टीप्लाई कर दिया, और एट द एंड ऑफ डे टोटल रेट ऑफ द सीपेज इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3. so you are going to just doing arithmetic summation of both of these. So to summarize it, I just have told you कि अगर आपके इक्वल लीनियर स्क्वायर नहीं है, कर्वी लीनियर स्क्वायर नहीं है जिसमें B और L इक्वल नहीं है, ओके, तो यू विल यूज दिस इक्वेशन.
and if they are rectangular you have to multiply it with the factor n, and n is basically the ratio of b by l. And Fahad, can you tell me what is b and what is l? सर ये लेंथ है between two consecutive flow lines and two consecutive Distance equipotential between lines. two flow line is known as b, and distance between two equipotential line is known as l. So any question related to the entire lecture, please? So in next lecture we will solve the practical example, and then I will show you कि head constant है या नहीं है. Okay, so if there is any question, please send me Teams. You can text me on Team anytime, okay? And have a good day. एक्सक्यूज मी सर। सर Yes, yes. ये जो शीट होता है सर, हाँ. दरमियान में जो शीट है सर, कौन सा शेप? सर ये स्केच आप जरा दिखा दे सर। ये वाला? शीट फाइल की बात कर रहे हैं सर, शीट फाइल की। शीट फाइल सर। जी ये सर मुझे आप पूछें क्वेश्चन, शाबाश, कोई नहीं मसला आता नहीं, है। पूछें। सर ये जो है सर, जिस तरह तुर्बुलेंट डैम में सर वो मेन जो वो बैरियर होता है सर रिजर्वायर के लिए सर, हाँ ये दोनों सर सेम होते सर? मुझे समझ नहीं आई, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये जो ये शीट फाइल है सर, हाँ ये रिजर्वायर के लिए बैरियर है सर, बैरियर वॉल जो होता है सर उसका हाँ स्पेसिफिक नेम, बिल्कुल। ये दोनों सेम है सर? शीट पाइल सेम किस चीज के साथ सेम है? सर ये सर रिजर्वायर के लिए जो सर हम बैरियर लगाते हैं सर। हाँ बैरियर है ना, ये बेसिकली हम इस तरफ पानी जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई बेसमेंट बनाना चाहता हूँ, कोई बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, कोई ब्रिज बनाना चाहता हूँ, कोई उसका ब्रिज की फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ओके लेट मी शो यू एग्जांपल, जस्ट गिव मी 1 मिनट। One second only. Okay, this is क्या नाम है आपका जिन्होंने क्वेश्चन किए? दिस इज गुड क्वेश्चन। ओके सर आजम खान सर। आजम ये देखो आप प्रैक्टिकली, एक मिनट, ये नजर आ रहा है आपको कुछ? सर मेरा स्क्रीन स्टक हो गया सर। नो सर, वाइट स्क्रीन है अभी सर, वाइट स्क्रीन है सर अभी। ओके वेट Is it visible now? No, sir. No, sir. No, sir. Just 1 second, please. अभी ये क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है सर। ओके वेट, तो आजम ये नजर आ रहा है कुछ आपको, ये फिगर? यस सर। इस फिगर में क्या है कि ये एक रिवर है फॉर एग्जांपल, तो ये रिवर फ्लोइंग रिवर है, यहाँ पे वो कोई ब्रिज की फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये शीट पाइल से एक कोफर डैम इंस्टॉल किया है। ये बात समझ आ रही है? तो इसमें जब ये शुरू किया होगा तो ये शीट पाइल के इस तरफ पानी होगा, अंदर की तरफ भी, फिर उन्होंने डी वाटर किया होगा। तो अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कितना वाटर सीप करेगा फॉर एग्जांपल, तो ये इसकी अपस्ट्रीम साइड होगी, ये डाउन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये शीट पाइल की प्रैक्टिकल। अब आपका क्वेश्चन का आंसर मिला है जो आप कह रहे थे? यस सर, जज़ाकल्लाह सर। ओके।